ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پگڈنڈی پر دوڑتے دوڑتے اس کے پیر دکھنے لگے تھے، جبکہ تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ پگڈنڈی کی دونوں جانب کھیت تھے، جس میں لہلہاتی فصلیں حسین نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس خوبصورتی اور خاموشی سے بھری فضا کو گولی کی آواز نے بری طرح متاثر کیا تھا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ کانچ کے ٹوٹنے پر ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ٹانگوں کی جان جیسے نکل گئی تھی۔ اسے لگا وہ وہیں مر جائے گی۔ گرتے پڑتے جو ہی ڈیرے پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اس کا 6 سالہ بیٹا حنان خاکوانی احسن خاکوانی کے ساتھ پول کے کنارے پر ہاتھوں میں پستول لیے سامنے لگی کانچ کی بوتلوں کا نشانہ لگا رہا تھا۔ چاچو، میں نے بوتل کو ہٹ کر دیا، یاہو! وہ خوشی سے بولتا احسن سے لپٹ گیا، جو اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اسے شاباشی دے رہا تھا۔ مگر جو ہی اس کی نظر ماں پر پڑی، پستول ہاتھ سے چھوٹ کر پول میں جا گری۔ ماما جی! ننھے حنان کے چہرے پر غصے سے بھری ماں کو دیکھتے ہی خوف جھلکنے لگا۔ تبھی چچا سے الگ ہو کر وہ تیزی سے پول سے باہر نکلا۔ اس کا پورا لباس پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ ماما جی، آپ کب آئیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماں کے قریب آیا، جو ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے احسن خاکوانی کو شدید ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کی انگلی ہلانے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کتنی بار بولا ہے نینو کہ جاہل لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، پر تم تو حرکتیں بھی انہی جیسی کرنے لگے ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ احسن خاکوانی کو بری طرح چبھی تھی، اور اس کا اشارہ بھی وہ بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ تبھی سر جھٹک کر تولیے سے بال رگڑنے لگا۔ پر ماما جی، میں تو چاچو کے ساتھ تھا۔ نینو معصومیت میں ماں کا طنز نہ سمجھ سکا۔ تمہارے چاچو تو بیٹا پڑھے لکھے جاہل ہیں، ان سے زیادہ میل جول تو زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ بنا کسی لحاظ کے احسن کو سرد نگاہوں سے دیکھتی بولی، جس نے سر اٹھا کر اب کی بار خاصی سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ ماما جی ایسے نہیں بولتے۔ نینو کو چاچو کے لیے برا لگا، جو خود بنا برا منائے اب مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں تولیے کو رگڑنے لگا تھا۔ آپ گھر جاؤ زونی باجی کے ساتھ اور جلدی سے ہوم ورک پورا کرو۔ سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر وہ نینو سے مخاطب ہوئی تو وہ فرما برداری کے ساتھ سر ہلاتا اپنے چاچو کو ماں سے نظر بچا کر فلائنگ کس دیتا بھاگ گیا، مگر پھر بھی ہانیہ دیکھ چکی تھی۔ کیسی ہیں آپ ہانیہ؟ وہ اس کی تلخ باتوں کو بھلا کر اس کے مقابل آتا نرمی سے پوچھنے لگا۔ بھابھی، بھابھی پکارا کرو مجھے، سمجھے؟ وہ غصے سے بولی تو احسن زخمی سا مسکرا دیا۔ جب پچھلے 3 سالوں سے اپنے بھائی کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا تو آپ کہاں سے میری بھابھی ہوئی؟ اس کی ڈھٹائی قابل دید تھی۔ ہانیہ کا دماغ غصے کی شدت سے مزید گرم ہونے لگا۔ دیکھو احسن، میرے بیٹے سے دور رہو۔ اپنی گندی سیاست اور معصوموں کے خون سے لتھڑی ان بدنوکوں سے میرے بچے کو دور رکھو، ورنہ میں اسے لے کر ایسی غائب ہوں گی کہ تم پوری دنیا بھی الٹ پلٹ دو تو مجھے نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ انگلی اس کے چہرے کی جانب اٹھائے وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ وجود غم و غصے کی زیادتی سے کانپ رہا تھا۔ آپ اس حویلی سے ایک قدم نکال کر دکھائیں، باقی سب میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ رہی بات حنان کی، وہ میرے سگے بھائی کا خون ہے۔ آپ سے پہلے میں نے اسے گود میں لیا تھا، اس کو گھٹی دینے والا میں تھا۔ ہمارا خون کا رشتہ ہے، آپ کا یہ جذباتی پن اس رشتے کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ احسن کا انداز نرم ضرور تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نہایت سخت تھے۔ کاش کہ میرے بچے کا تم سے اور اس حویلی کے مکینوں سے خون کا رشتہ نہ ہوتا، تو میں ایک پل میں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر اپنی اولاد کا ہاتھ تھامتی اور اسے اس جہنم سے دور لے جاتی، مگر افسوس کہ میرے پاس یہ چوائس نہیں ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتی اسے اپنی حسرت کے بارے میں دلیری سے بتا رہی تھی۔ احسن کے چہرے کا رنگ بدلا۔ چوائس تو آپ کے پاس اپنے لیے بھی نہیں ہے، اس حویلی اور اس کے مکینوں سے دور جانے کی۔ ایک بار آپ میرے نکاح میں آ جائیں، پھر آپ کے بھی یہاں سے بھاگ جانے کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ وہ بات کے اختتام پر مسکرایا، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ہانیہ کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں کسی صورت تم سے شادی نہیں کروں گی۔
तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूं, तुमसे 4 साल बड़ी हूं। या हैवानियत के साथ हविस भी अब तुम्हारे खून का हिस्सा बन गई है? वो जब्त खोकर चिल्ला उठी। एहसन की आंखें लम्हे भर में सुर्ख हुई। मुट्ठियां भेजकर उसने हानिया को घूरा, जो नथने फुलाए सुर्ख चेहरे के साथ उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मेरे भाई के जाते ही मेरा आपसे ये रिश्ता खत्म हो गया था, और शरण मैं आपको निकाह का पैगाम दे सकता हूं और निकाह भी कर सकता हूं। और ये सोचिएगा भी मत कि मैं या हवेली का कोई भी फर्द हनान से दस्तबरदार होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुले दिमाग से इस रिश्ते के बारे में सोचें। हनान को भी बाप की जरूरत है। वो बात के इख्तिताम पर हानिया के पूरे तन बदन में आग लगा गया था। पैर पटक कर वो मुड़ी तो वो वहां से जा चुका था। बेबसी के एहसास से उसके माथे पर पसीना नमूदार हुआ, जबकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। एहसन खाकवानी उसे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा लगने लगा था। हानिया हवेली वापस लौटी तो हनान दादी की गोद में लेटा सर की मालिश करवा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वो रस्मी अंदाज से सास पर सलामती भेजती किचन के जाने बढ़ी, जबकि उनकी आवाज पर रुकना पड़ा। हानिया, तेरा आज फिर एहसन से कोई झगड़ा हुआ है? उनके सवाल पर वो जब्त से आंखें मीचती मुड़ी और फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर उन्हें देखा। नहीं अम्मा, आपसे किसने कहा? मां के साथ झूठ बोलने पर हनान ने भी चौंक कर उसे देखा। अपना नैनू बता रहा था कि तू डेरे पर पहुंच गई थी। नईमा बेगम अब भी नरमी के साथ उसे इस्तफसार कर रही थी। हानिया ने बाजू सीने पर लपेटे और सपाट लहजे में गोया हुई। जी गई थी, अपने बेटे को लेने गई थी। उसने लफ्ज बेटे पर खासा जोर दिया। तो क्यों गई थी मेरी धी? ऐसा नहीं से ले आता ना? वो बेचारगी से हानिया का हठधर्मी भरा अंदाज देखते बोली। बिल्कुल ले आता एहसन, वैसे ही ना जैसे इसकी बाप की लाश उठा कर लाया था। हनान की जानिब इशारा करते वो गुस्से से बोल उठी। नईमा बेगम ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा, आंखों में सदमा उतरा था। देखिए अम्मा, जरा देखिए इसके हाथ। वो तेजी से उनकी जानिब लपकी और हनान के नन्हे हाथ उनके सामने करते जुनूनी अंदाज से बोल रही थी। आपके उस जाहिल लड़के ने मेरे मासूम बच्चे के हाथों में न जाने कब से पिस्तौल दे रखी है, और मुझे पता भी नहीं। आप लोगों को मुझ पर जरा तरस नहीं आता? मेरा शौहर आप लोगों की दुश्मनियों में अपनी जान दे बैठा, अब मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहते हैं आप? इतनी बेहिसी और इतनी बेरहमी कहां से लाते हैं इस हवेली के लोग? वह हनान को सीने से लगाती बिलक बिलक कर रो पड़ी। नईमा बेगम ने दुख से इस बिखरी लड़की को देखा, जो इस वक्त बुरी तरह तड़प तड़प कर रो रही थी। उसके सीने से लगा हनान अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको उसके चाचू ने सिखाया था कि मर्द रोया नहीं करते। दरवाजे पर खड़े एहसन और हानिया के बाप सलीम खाकवानी की बेबस नजरें रोती हुई हानिया पर थी, और वो उस सबसे बेखबर अपने दिल का बोझ हल्का करने में लगी थी। रात को हनान को सुलाने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। गैलरी से गुजरते उसका रुख बाप के कमरे की जानिब था। सामने से एहसन को आता देखकर उसने अनजान बन कर निकलना चाहा, मगर उसकी पुकार पर इसे मजबूरन रुकना पड़ा। आप ठीक हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। हानिया ने सपाट नजरों से उसे देखा। ठीक हूं, बिना कोई बदमजगी पैदा किए वो जवाब देकर जाने लगी कि एहसन के अगले अल्फाज ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। प्लीज हनान के सामने यूं मत रोया करे, वो अभी बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि उसके मासूम जहन को ऐसी कोई बात मुतासिर करे। उसके लहजे में इल्तिजा थी। हानिया ने सीने पर हाथ लपेटकर तंज से उसे देखा। इसीलिए तुमने उसके मासूम जहन को असलहे और बंदूक के शौक से भर दिया? वो भुनाई। ये शौक कल उसकी हिफाजत करेगा। यहां बात सिर्फ शौक तक महदूद नहीं है, मैं उसको सेल्फ डिफेंस के साथ अपनों का डिफेंस करवाना भी सिखा रहा हूं। आज उसने पहली बार हानिया को वजाहत दी, जो उसके जवाब पर वो अजीब नजरों से उसको देखती मुस्कुराने लगी। क्या फायदा, उसके बाप ने भी ये सब सीखा था, और फिर एक गोली ने उसको जिंदगी और हम सबसे बहुत दूर कर दिया। उसकी आवाज गम की शिद्दत से लर्जी थी। वो उनका नसीब था और हम इस चीज को कबूल करने के पाबंद हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हनान के साथ भी ऐसा कुछ होगा।
वो तहम्मुल से उसको समझाना चाह रहा था। हानिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर भूखी शेरनी बनी उसका गिरेबान जकड़ गई। उसका नसीब होगा या नहीं, मगर तुम्हारे इरादों से लगता है कि तुम ऐसा कुछ करवा कर ही दम लोगे। वो उसकी आंखों में घूरते हुए सरगोशी भरे अंदाज में बोली थी। एहसन ने बेयकीनी से इस लड़की को देखा जो उसे एक धक्का देकर पीछे हटी थी। आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं? वो बेयकीनी के आलम में बोला। हानिया ने संगदिली से मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ क्यों नहीं, बात अगर जमीन जायदाद की हो तो बेटे बाप का गिरेबान नोच लेते हैं। तुम तो सिर्फ चचा हो। भतीजा रास्ते से हट गया तो तुम्हारी तो 5-6 उंगलियां घी में होंगी। ऐसा ही है ना? लोहा गरम देकर वो मजीद शिद्दत से जरबें लगा रही थी। एहसन ने शौक्ड नजरों से उस बेरहमी का मुजस्मा बनी लड़की को देखा और चुपचाप पलट गया। पीछे वो उसके अंदाज पर चंद लम्हे गिल्ट के आलम में खड़ी रह गई। दरवाजा हल्के से नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई, जहां सलीम खाकवानी बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। बाबा सरकार, उसने हौले से पुकारा तो वो चौंक कर जल्दी से उठे। हानिया बेटी, आओ ना। वो फौरन से आंखें मसल कर उठ बैठे और बिस्तर पर हाथ रखकर उसे पास बैठने का इशारा किया। मैंने आपको जगा दिया? वो उनके पास बैठकर शर्मिंदगी से पूछने लगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, बस यूं ही आंख लग गई। उन्होंने तेल की शीशी हानिया की जानिब बढ़ाई तो वो मुस्कुराकर उनके हाथ से लेती उनके पैरों की मालिश करने लगी। वो हर रात बाप के पैरों की मालिश करके सोया करती थी। तबीयत कैसी है आपकी? उसने बात का रस्मन अंदाज से आगाज किया। सुबह सवेरे तक बेहतर थी, पर जब आपको बारान की याद में रोते देखा तो लगा एक बार फिर से बीमार हो गया हूं। वो दुखी लहजे में बोले तो हानिया की आंखें भी नम हो गईं। बारान का जिक्र तो हर बार उसे रोने पर मजबूर कर देता था। बेटा, एहसन को गलत मत समझो। अगर हमें यहां रहना है तो हमारे मर्दों को ये सब सीखना पड़ता है, वरना हमारे दुश्मन बिना किसी झिझक के हमें खत्म कर देंगे। उनका बूढ़ा वजूद हानिया को ये वजाहत देते लरस रहा था। हानिया के हाथों का दबाव बाप के पैरों पर बढ़ा था, जैसे उसने अपने अंदर पकते लावे को संभालने की कोशिश की हो। अब्बा, क्या हम ये सब छोड़कर नहीं जा सकते? किसी ऐसी जगह जहां हमें अपने दुश्मनों का खौफ ना हो? हानिया ने आस भरे लहजे में पूछा। मेरे बच्चे, यहां हमारा आबाई घर है, जायदाद है, इस तरह से कैसे छोड़कर जा सकते हैं हम? उनके जवाब पर हानिया ने शदीद अफसोस से उन्हें देखा। क्या करेंगे बाबा इस घर का, जिस घर में बसेरा करने को घर वाले ही ना बचे? उसने धीमे लहजे में सवाल किया तो सलीम खाकवानी का दिल दर्द से सुकड़ा। वो गलत नहीं कहती थी, वो हमेशा से दुरुस्त थी, मगर वो अकेले ये फैसला नहीं कर सकते थे। बेटा, मैं... उन्होंने कुछ बोलना चाहा, मगर हानिया ने नरमी से उनको रोका। वो आज आखिरी बार उन्हें कायल करने आई थी। बाबा, ये दुश्मनी, ताकत, जायदाद और ये बंदूकें ना तो मेरे शौहर को बचा सकी, ना आपके भाई को। फिर आप क्यों इनसे इतना लगाव रखते हैं? क्यों इन्हें छोड़कर एक सुकून भरी जिंदगी नहीं गुजार सकते? वो बेबसी से उनसे ये सवाल कर रही थी। सलीम खाकवानी ने चंद लम्हे बेटी के चेहरे को देखा, जहां दर्द का समंदर ठाठे मार रहा था। अगर आप एहसन से शादी कर लें तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। उनकी बात पर वो बिजली की तेजी से उठी। बाबा, वो शौक थी। बेटा, पिछले 3 साल से हम आपकी मिन्नत कर रहे हैं। एहसन आपके इंतजार में है। वो किसी और से शादी करने के बारे में सोचना तक नहीं चाहता। अब तो आपकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। अब क्या चाहती हैं आप? क्यों लेट कर रही हैं? वो बेचारगी के साथ उससे इस्तफसार कर रहे थे। हानिया शदीद दुख और सदमे के साथ उन्हें देखे गई। बाबा, मैंने 18 साल की उम्र में अपने तमाम ख्वाबों को रौंद कर सिर्फ आपके हुक्म पर बारान से शादी कर ली थी। ये तो उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मेरे ख्वाब पूरे किए, मुझे तालीम दिलवाई और हर कदम पर मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि वो मुझे शहर भी शिफ्ट करवाना चाहते थे, मगर आप लोगों की बेजा जिद ने हमें मजबूर कर दिया। नतीजा क्या निकला? मेरा शौहर भी दुनिया से चला गया और ताया सरकार भी। मेरा बच्चा तो आप लोगों की जिद पूरी करने के चक्रों में यतीम हो गया ना। अब आप क्या चाहते हैं? वो एहसन से अटैच हो जाए,
और कल को अपने बाप की तरह चचा का मरा हुआ चेहरा भी देखे। वो बिना किसी लचक के उनसे सवाल कर रही थी। सलीम खाकवानी का हाथ बेसाख्ता अपने दिल पर पड़ा। ऐसा नहीं बोलते हानिया, उनके लहजे में इल्तिजा थी। बिल्कुल बाबा, ऐसे नहीं बोलते, लेकिन यहाँ के मकीन ऐसा होने के इंतजार में जरूर रहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ जिंदगियों की अहमियत दौलत से ज्यादा होती तो हम सब सुकून की जिंदगी बसर कर रहे होते। वो बहते आंसुओं के साथ बोलती वहां से निकल गई। पीछे सलीम खाकवानी बेबसी के साथ उसे जाता देखे गए। चाचू, हनान की आवाज पर एहसन ने तेजी के साथ अपनी आंखों से लगातार बहते आंसू साफ किए, जो हानिया के अल्फाज की बदौलत उसके फटते कलेजे की तकलीफ पर खुद ब खुद निकल रहे थे। फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर उसे देखा, जो नींद से भरी आंखों से उसे देख रहा था। तुम तो सो गए थे, फिर उठे क्यों? उसने हनान को पकड़कर गोद में बिठाया। मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा चाचू, मैं डर गया था। वो सहम कर बोलता उसके सीने में चेहरा छुपा गया। श्श, कुछ नहीं होता। जब भी बुरा ख्वाब देखते हैं तो किसी को भी नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से पनाह तलब करते हैं। ओके? उसके बालों में उंगलियां फेरते वो प्यार से समझा रहा था। हनान ने समझकर सर हिलाया और फिर अपने चचा की रोई रोई आंखों को फिक्रमंदी से देखा। आप रोए हैं? वो मासूमियत से पूछने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? एहसन ने उसकी छोटी सी नाक खींची। आप बाबा को याद करके रो रहे थे? मामा जी भी रोज रात को उन्हें याद करके रोती हैं, वो दुखी लहजे में उसे बता रहा था। एहसन ने चौंक कर उसे देखा। क्या वो हर रात रोती हैं? वो बेचैनी से पूछने लगा। हाँ जी, मुझे भी बाबा याद आते हैं, लेकिन मैं तो बहादुर हूं ना, इसीलिए रोता नहीं हूं, वरना फिर मामा जी को चुप कौन करवाएगा? वो अपनी उम्र से बड़ा अंदाज लिए बातें कर रहा था। एहसन ने बेसाख्ता उसके गाल चूमे। तू है जो मेरा शहजादा? वो हनान को गुदगुदी करने लगा तो कमरा हनान की खिलखिलाहटों से गूंज उठा। खुद पर और बहते आंसुओं पर काबू पाकर वो कमरे में वापस पहुंची तो हनान आगे से गायब था। अगर ये बात पुरानी ना होती तो हानिया का मारे बदहवासी और परेशानी के बुरा हाल हो जाता, मगर वो जानती थी कि हनान इस वक्त कहाँ होगा। तभी पैर पटकती एहसन के कमरे की जानिब गई। दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर खुला देखकर रुक गई। फिर आहिस्तगी से सर अंदर डालकर झांका, जहां वो चचा भतीजा एसी फुल तेज चलाए खेस लपेटकर एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। एहसन का एक बाजू हनान के गिर्द लिपटा हुआ था, यूं के जैसे नींद में भी वो उसकी हिफाजत कर रहा हो। हानिया चंद लम्हे उन्हें देखती रही, फिर चुपचाप कमरे से निकल गई। वो हनान को जगाकर उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। एहसन के कमरे से निकलकर वो नईमा बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। रात को वो लाजमी उनकी टांगें दबाकर सोती थी, चाहे कितनी ही तल्ख कलामी क्यों ना हो जाए। वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलती थी, मगर उसका और उसके जज्बात का एहसास किसी को नहीं था, जिसने उसको इस हद तक तल्ख बना दिया था। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था। हानिया रॉकिंग चेयर पर झूलती 3 साल पुराने मनाजिर को दोहराकर अपना वजूद और दिल एक बार फिर से छलनी कर रही थी। हनान ने ठीक ही तो बताया था एहसन को कि उसकी मामा हर रात रोते सोया करती थी। हानिया को लगता था कि वो सो रहा है तो नोटिस नहीं करेगा, लेकिन वो एहसन का शागिर्द था, हर चीज को बारीक बीनी से देखता था और उस पर नजर रखता था। हानिया आज भी वो दिन नहीं भूली थी जब हमेशा की तरह बारान सुबह सवेरे तैयार होकर अपने बाप के साथ जमीनों पर गया था। 3 साला हनान उस वक्त गहरी नींद सो रहा था और उसकी आंख तब खुली थी जब उसने घर में चीखों की आवाजें सुनी थी, और फिर बाप और दादा को लहू से लुथड़ा देखकर वो चीख चीख कर रोया था। वो घबरा गया था क्योंकि उसके बाबा उसको जवाब नहीं दे रहे थे, मगर उससे ज्यादा घबराहट उसे अपनी माँ को देखकर हो रही थी, जो एक गैर मरई नुक्ते पर घूरती चुपचाप बैठी थी। लड़ाई खासी पुरानी थी, मामला जमीनों का था। पानी की तकसीम पर झगड़ा हुआ और बात बढ़ने पर नतीजा ये निकला कि यहाँ खाकवानी खानदान के 2 बंदे मारे गए और दूसरी तरफ खानदान दुश्मन में 4 अमवात हुई थी, और वो आज भी उस दुश्मनी को नहीं भूले थे। हानिया का दिल महबूब, शौहर और ताया ससुर को खोने के बाद बिल्कुल कमजोर हो गया था।
वो ऊपर से चाहे जितनी तख्त बनती मगर अंदर से बेतहाशा डरपोक और नाजुक थी। मगर अब हालात बदल गए थे। उसे अपने बेटे और उसकी जान की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करना था। तभी फोन उठाकर अपनी दोस्त को कॉल मिलाई। चंद लम्हों के इंतजार के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हानी, कैसी हो तुम? दूसरी जानिब नाजी की चहकती आवाज पर उसके लब मुस्कुराए। वो हानिया की बचपन की सहेली थी। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? वो मोहब्बत से पूछने लगी। मैं तो फिट फाट, तुम सुनाओ, तुम्हारा गुड्डा कैसा है? बड़ा याद करती हूं मैं उसे। वो हनान का पूछ रही थी। हानिया अब की बार दिल से मुस्कुराई। वो भी ठीक है, अक्सर जिद करता है कि नाजी खाला के पास ले चलो। वीडियो कॉल से उसका दिल नहीं भरता, अब वो रूबरू होकर तुमसे मिलना चाहता है। बेटे का जिक्र करते उसकी अंग अंग से मोहब्बत झलक रही थी। हाँ तो ले आओ ना फिर, देर किस बात की? नाजी की तो मुराद बराई। यही सोच रही हूं मैं भी। नाजी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हारी मदद चाहिए होगी मुझे। वो गहरी सांस भरकर बोली। मेरी जान भी हाजिर है, बताओ क्या बात है? नाजी खुलूस से बोली। हानिया ने चंद लम्हे रुक कर फैसला किया और फिर नाजी से अपने ख्यालात शेयर करने लगी। दूसरी जानिब नाजी दिलो जान से उसकी मदद करने को तैयार थी। अगली सुबह वो हनान को एहसन के साथ स्कूल भेजने के बाद जूनी के साथ मिलकर किचन समेट रही थी। सलीम साहब दवाइयों के ज़ेरे असर अभी तक सो रहे थे, जबकि नईमा बेगम बरामदे में बैठी हनान के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुन रही थी। जब ही मेन गेट खुला और गाड़ी गैराज के अंदर दाखिल हुई, किसी अनहोनी के ख्याल से हानिया का दिल धड़क उठा। वो लोग वापस क्यों आ गए थे? हनान को स्कूल ड्रॉप करने के बाद तो एहसन ऑफिस चला जाता था और फिर जब उसे पिक करना होता तब वापस आता था। वो बदहवास होकर बाहर को लपकी कि नईमा बेगम की चीखों ने उसको मजीद दहला दिया। बिना जूती पहने नंगे पैर वो गैराज में पहुंची तो सामने का मंजर उसका दिल नोच कर निकालने के लिए काफी था। हनान एहसन की गोद में बेसुध था, गर्दन पीछे को लुढ़की हुई थी और एक बाजू झूल रहा था। उसका स्कूल यूनिफॉर्म खून से लुथड़ा था। हानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। टांगों ने मजीद साथ देने से इनकार कर दिया था। घुटनों के बल वो जमीन पर गिर गई और किसी दीवाने की तरह हनान का बेजान वजूद देखे गई। एहसन ने लब कुचल कर अपने दर्द को बर्दाश्त किया, फिर अपने आदमियों को इशारा किया जो हमले के दौरान होने वाले अपने जख्मी साथी को उठाकर ले गए थे। एहसन पुत्र, ये क्या हुआ? नईमा बेगम अपना बूढ़ा वजूद घसीटती जूनी के सहारे आईं और सामने का मंजर देखते ही उनके हाथ अपने दिल पर पड़ा। अम्मा, सब ठीक है। वो उनकी तसल्ली करवाता हानिया के सामने घुटनों के बल बैठा, जो खाली खाली नजरों से उसकी गोद में पड़े हनान को देख रही थी। हानिया, उसने हौले से पुकारा। मरवा दिया तुमने इसे? हनान की जानिब इशारा करती वो यूं बोली जैसे उसकी आवाज किसी खाली कुएं से आई हो। हानिया, होश करें। उसने हानिया का हाथ थामना चाहा, मगर वो शदीद बरहमी से उसका बाजू झटक गई। ना चाहते हुए भी एहसन के लबों से कराह निकल गई थी। मार दिया तुमने मेरा बच्चा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। एहसन दांत पर दांत जमाता अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। हानिया लम्हे भर को रुकी और फिर एहसन को देखा, जो सर झुकाए न जाने क्या कर रहा था। अगले लम्हे उसने झपट कर हनान के वजूद को उससे छीनकर खुद में समेटा था। मेरे बच्चे को मत छूना तुम, कातिल कहीं के, दरिंदे हो तुम। वो अपने हवास खोती उस पर चिल्लाती हनान को गोद में उठाए खड़ी होने लगी, मगर उसकी टांगें इतनी बुरी तरह लरज रही थी कि वो वापस जमीन पर गिर गई। मामा जी, उस पल हनान की आवाज ने जैसे सबके वजूद में बिजली भर दी थी। हानिया ने चौंक कर उसे देखा। नैनू? वो बेताबी से उसका चेहरा छूकर देखने लगी। तुम ठीक हो? उसका चेहरा दीवाना वार चूमते वो बुरी तरह रो रही थी। मामा जी, चाचू को गोली लग गई थी, मुझे बचाते हुए। आप इनको हॉस्पिटल ले जाए ना, उनको दर्द हो रहा होगा। वो भीगी आंखों के साथ सर झुकाकर बैठे एहसन को देखकर मां से इल्तिजाइया लहजे में बोला था। हानिया समेत सबने चौंक कर एहसन की जानिब देखा, जो उनकी आंखों के सामने झटके से जमीन बोस हुआ। उसके वजूद से भल भल निकलता लहू जमीन को रंगता जा रहा था।
जहां सबकी चीखें गूंजी वहीं हानिया फटी फटी आंखों से ये सब होता देखे गई। कॉरिडोर में मुसलसल बेचैनी से चक्कर लगाती हानिया की नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थीं, जिसके पार इस वक्त एहसन का ऑपरेशन चल रहा था। हनान इस वक्त घर में नईमा बेगम के पास था। जब इन पर हमला हुआ था तब एहसन ने हनान के हिस्से की गोली अपने वजूद में खाई थी। ये तो शुक्र था कि उसके बॉडीगार्ड साथ थे, जिनकी मदद से वो दुश्मन के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया। हनान मासूम था और उसने ऐसी भयानक सिचुएशन अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। तभी वो खौफ से बेहोश हो गया और हानिया उसको मुर्दा तस्वुर करके जख्मी हुए एहसन पर पुल पड़ी थी। कुछ देर बाद नर्स की उम्मीद पर वो तेजी से उसकी जानिब लपकी। पेशेंट को ब्लड की सख्त जरूरत है, हमें फौरन ब्लड अरेंज करके दे, वो उजलत भरे लहजे में बोल रही थी। हानिया ने चंद लम्हे उसको देखा और फिर एक फैसले पर पहुंचकर गोया हुई। मेरा और पेशेंट का ब्लड ग्रुप सेम है, मैं ब्लड देने को तैयार हूं, वो फैसला कुन लहजे में बोली। ठीक है, आप मेरे साथ चलें, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोलकर आगे बढ़ गई। हानिया ने भी उसकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए थे। एक हफ्ता मजीद गुजर गया। एहसन डिस्चार्ज होकर घर लौट चुका था। जो एहसान उसने हानिया पर किया था वो हर तरह से उसकी खिदमत करके उतारना चाहती थी, इसीलिए दिन रात एक टांग पर खड़ी उसकी दवाइयों और ग़िज़ा पर नजर रखे हुए थी। चाचू, अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? नन्हा हनान चाचू से लिपटा अपने डर का इजहार कर रहा था। अंदर दाखिल होती हानिया के कदम बेसाख्ता रुके। कुछ भी नहीं होता, फिर आपको ज्यादा बहादुर बनना पड़ता, अपनी मामा का ख्याल भी रखना होता और उनको प्रोटेक्ट भी। वो प्यार से उसके गाल छूते उसे समझाने लगा। जवाबन हनान ने फौरन नफी में सर हिलाया और उसके साथ मजीद सख्ती से लिपट गया। नहीं, मैं अभी छोटा हूं, आप मेरी मामा जी का ख्याल रखेंगे, नाना सरकार ने ऐसा बोला था। उसकी बात पर जहां हानिया को झटका लगा वहीं एहसन सरशार सा मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, पर आपको अपनी मामा को राजी करना होगा, वो थोड़ी जिद्दी है ना। वो बात के अख्तिताम पर शरीर होकर हंसा तो हनान भी खिलखिला उठा। हानिया वहीं से अपने कदम मोड़ गई। एहसन का खाना उसने जूनी के हाथ भिजवा दिया था, मगर उसका दिमाग बहुत सी उलझनों का शिकार हो चुका था। कुछ दिन मजीद गुजर गए। एहसन के जख्म देखभाल की बदौलत मुंदमिल होना शुरू हो गए थे। हनान भी स्कूल जाने लग गया था, मगर अब की बार एहसन ने ना सिर्फ सिक्योरिटी सख्त की थी बल्कि इस बार पुलिस की भी मदद ली थी, जिससे खतरा तकरीबन टल गया था। हानिया तो इतनी खौफजदा थी कि हनान को घर से निकलने ही नहीं देना चाहती थी। फिर सबके समझाने पर बमुश्किल राजी हुई, मगर कोई उसके दिमाग में पकती खिचड़ी से वाकिफ नहीं था। एक रात एहसन मीटिंग के सिलसिले में शहर गया था। हानिया को इससे अच्छा मौका नजर नहीं आया। गेट कीपर और गार्ड्स के खाने में नशा मिलाकर उसने सबसे पहले उनसे छुटकारा हासिल किया, फिर जल्दी से जरूरी सामान पैक करने लगी। मामा जी, आप कहीं जा रही हैं? नन्ना हनान हथेलियों में चेहरा गिराए हैरानी से पूछ रहा था। हाँ, हम आपकी नाजी खाला के घर जा रहे हैं, वो सरप्राइज देने वाले अंदाज में बोली तो हनान का चेहरा हकीकी खुशी से खिल उठा। सच्ची? मैं भी जल्दी से पैकिंग कर लेता हूं। वो अपना सफरी बैग उठा लाया जिस पर उसका पसंदीदा कार्टून बना था। ये बैग उसे एहसन ने गिफ्ट किया था। मैंने तो आपका सामान पैक कर लिया है गुड्डे, वो प्यार से उसका गाल छूते बोली। कोई बात नहीं मामा जी, मैं इसमें अपने टॉयज रख लूंगा। वो अपनी खुशी में मगन था। हानिया ने बिना तवज्जो दिए सर हिला दिया। वो एहसन के आने से पहले जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी और फिर उस रात हनान के साथ खामोशी से उस घर की दहलीज पार कर गई, सब कुछ पीछे छोड़े, क्योंकि उसको अपने बेटे की जिंदगी इस घर के मकीनों से ज्यादा अजीज थी। मामा जी, हमने चाचू को तो बताया नहीं, वो परेशान हो जाएंगे, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दें। हनान की पिछले कई घंटों से एक ही दोहराए जाने पर हानिया ने अब की बार उसे शदीद गुस्से से देखा तो वो दुबक कर बैठ गया। बस तेजी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। हानिया वो कातिल हवेली और उसके मकीन बहुत पीछे छोड़ आई थी, मगर एहसन का खौफ किसी आसेब की तरह उसे चिमटा हुआ था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बार बार नाखूनों को दांतों से चबाती वो शदीद बेचैनी का शिकार थी।
हनान माँ के गुस्से से डरकर अपना बैग सीने से लगाए चुपचाप बैठा था। बस रुकी और सबके सब मुसाफिर जिनकी मंजिल आ गई थी वहां उतर गए। हानिया ने भी अपना सामान उठाया और हनान का हाथ मजबूती से थामकर नीचे उतर आई। बेंच पर हनान को बिठाकर उसने इर्द गिर्द देखा और पर्स से फोन निकालकर ऑन किया, जो कि उसने सारे रास्ते बंद करके रखा था। फोन ऑन करते ही उसका दिल उछलकर हलक में आया। तकरीबन 200 से भी ऊपर एहसन की मिस्ड कॉल्स आई थी। यहां तक कि सलीम साहब ने भी उसको कॉल्स की थी। हानिया के हाथों में लर्जिश उतर आई। बमुश्किल उसने नाजी का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब नाजी ने कॉल रिसीव की तो उसकी रोती बिलकती आवाज पर हानिया का दिल एक नई आजमाइश का सोचकर फिक्रमंद हो गया। हानी यार, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ है, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। तुम ऐसा करो, जल्दी से एड्रेस नोट करके घर चली जाओ। मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट का पासवर्ड भी मैसेज कर देती हूं। वो जल्दी से बोलकर माजरत करती कॉल काट गई। हानिया की हालत ऐसी थी जैसे अपने फैसले पर पछता रही हो, और हनान के सवाल उसके हाथ पैर फुलाने के लिए काफी थे। कुछ ही मिनट के बाद नाजी का मैसेज आ गया। उसका अपार्टमेंट किसी बिल्डिंग में था जो कि यहां से ज्यादा दूर नहीं थी, मगर हानिया का दिमाग इस सब सूरत हाल से इतना उलझा कि उसे समझ नहीं आ रही थी वहां तक कैसे जाए। उसको इतना संभाल कर और छुपा कर रखा था खानदान वालों ने, ये कि वो एक छोटा सा काम भी खुद नहीं कर पा रही थी। मैडम, कोई प्रॉब्लम है? मर्दाना आवाज पर हानिया ने चौंक कर सर उठाया तो सामने एक आदमी शाइस्तगी के साथ उससे पूछ रहा था। जी, इस एड्रेस पर जाना है, वो हनान को खुद से चिमटाते बोली। अच्छा, यहाँ? अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको ले जाता हूँ, मेरा अपार्टमेंट भी इसी बिल्डिंग में है। उसने ऑफर की तो हानिया ने चंद लम्हे की शशोपंच के बाद सर हिला दिया और उसकी तकलीद में चल पड़ी। भाई, ये हम कहाँ जा रहे हैं? एड्रेस तो कुछ और है। काफी देर चलने के बाद जब हानिया को एहसास हुआ तब काफी देर हो गई थी। जगह खासी सुनसान थी और रात होने की बदौलत वहां तारीकी छाई हुई थी। ये आसान रूट है मैडम, इसीलिए लेकर जा रहा हूं, हम जल्द अपनी मंजिल पर होंगे। उस आदमी के जवाब देने पर हानिया को उसका अंदाज और लहजे में फर्क महसूस हुआ। छठी हिस्स ने फौरन से खतरे की घंटी बजाई। एक नजर हनान पर डाली जो अब थके थके कदमों से चल रहा था। उसने बैग अभी तक सीने से लगाया हुआ था। हानिया ने अपने कदम सुस्त कर दिए ताकि वो उस आदमी से थोड़ा दूर हो सके, और जैसे ही मौका मिला वो तेजी से हनान को खींचती वापस भाग पड़ी। वो भी माँ का साथ देने को पूरी हिम्मत से दौड़ रहा था। कहने को वो छोटा बच्चा था, मगर उसको इस अजनबी आदमी से अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। उस आदमी ने जैसे ही शिकार हाथ से निकलता देखा तो एक बड़ी सी गाली देकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। हानिया के हाथ में सामान था जिसकी वजह से वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रही थी। उस शैतान ने जल्द ही उनको जा लिया और हानिया के मुंह पर कपड़ा रखे उसे घसीटा। हनान और हानिया का हाथ छूटा और एक दर्दनाक चीख हानिया के हलक से बरामद हुई। हनान धक्का लगने से दूर जा गिरा। जब सामने देखा तो वो शख्स उसकी मां को घसीट कर ले जा रहा था। हानिया के चेहरे पर एक नशा आवर कपड़ा रखा था जिससे वो बेहोश हो गई थी। मामा जी, मेरी मामा को छोड़ दो, वो गुस्से से बोलता उस दरिंदे की टांगों को लिपट गया और अपनी दांत उसकी रान में घुसा दिए। वो शख्स बिलबिलाकर सीधा हुआ और एक जोरदार थप्पड़ हनान के चेहरे पर रसीद करने के साथ उसे धक्का दिया तो वो घसीटता हुआ जा गिरा। उसके नन्हे वजूद पर पथरीली जमीन के बायस गहरी खराशें पड़ गई थी। हनान ने अपनी तकलीफ को नजरअंदाज किए चंद लम्हे नथने फुलाकर उसे देखा और फिर अपने बैग से कुछ निकाला। उसके हाथ में एक छोटे साइज का पिस्तौल था जिससे उस शख्स का निशाना बनाते उसके हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो शख्स अब हानिया को कंधे पर डाले ले जा रहा था। हन्नान ने लम्हा भर की देरी किए बगैर गोली चला दी। लहू उस शख्स की रान से फूट पड़ा। बिलबिलाकर वो जमीन पर गिरा था। उसके गिरने से हानिया भी जमीन पर जा गिरी। उसके माथे से भी लहू जारी हो गया था। हन्नान दौड़कर मां के पास गया और रोते हुए उसका गाल थपथपाया, मगर वो होश से आ रही थी। मामा जी प्लीज उठे ना, वो बिलक रहा था, मगर उसकी मां नहीं सुन रही थी। वो भागकर बिखरे हुए सामान की जानिब लपका और मां का फोन निकाला। उसकी उंगलियां अपने चचा का नंबर डायल कर रही थी। चाचू, दूसरी जानिब बिना किसी देरी के एहसन ने कॉल रिसीव की थी। चाचू की जान, प्लीज मुझे बताओ आप कहाँ हो? एहसन बेताबी की इंतहा पर था।
चाचू, इस गंदे अंकल ने मामा जी को बेहोश कर दिया, वो मुझे जवाब नहीं दे रही। माँ का सर गोद में रखे वो मुसलसल अपने नन्हे हाथ उसके चेहरे पर फेर रहा था। प्लीज मेरी जान, रोना बंद करो। आप ऐसा करो, फोन की लोकेशन ऑन करो। चाचू ने आपको सिखाया था ना, शाबाश, जल्दी से। दूसरी जानिब एहसन खुद पर काबू पाए उसको प्यार से समझा रहा था। हन्नान ने उसके कहने पर अमल किया। लोकेशन ऑन को होते ही पुलिस ने उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया। इस दौरान एहसन मुसलसल हन्नान के साथ राब्ते में था, जिसकी निगाहें अपनी गोद में रखे माँ के चेहरे पर थी। उसके आंसू टूट टूट कर हानिया का चेहरा भिगो रहे थे। हानिया को लगता था कि वो सिर्फ हन्नान से मोहब्बत करती थी। अगर एक बार उठकर उसका चेहरा पढ़ लेती तो जान जाती कि वो तो मोहब्बत में माँ से भी सबकत ले गया था। इस कमरी में उसने अपने नन्हे हाथों को लहू से रंगा था, वो भी अपनी माँ के नाम पर। घंटे गुजरते गए, पहले 1, फिर 2 और 3। बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ जब पुलिस का सायरन हर तरफ बज उठा। वो अंधेरी जगह रोशनी से जगमगा उठी और इस रोशनी में हन्नान ने अपने चाचू को दूर से अपने जानिब आते देखा। एहसन पर सारे जज्बात सामने का मंजर देखकर जैसे गालिब हुए थे। उसका नन्हा भतीजा, उसकी भाई की इकलौती निशानी, अपनी माँ का सर गोद में रखे बैठा था। एक माँ के चेहरे पर हाथ था जबकि दूसरे में पिस्तौल थी, और उस पिस्तौल का निशाना जो बना था वो मकरू वजूद साथ ही बेसुध पड़ा था। वो दीवाना वार उसकी जानिब लपका और पूरी शिद्दत से उसको खुद में भेजा। हानिया का वजूद दरमियान में था, मगर एहसन को कोई परवाह नहीं थी। वो जो हानिया से कम ही नजर मिलाकर बात करता था, आज उसकी और उसकी औलाद के लिए रो रहा था। ये एहसन खाकवानी का उसूल था कि इज्जत को वो मोहब्बत पर तरजीह देता था, इसलिए इतने साल उसने हानिया के इंतजार में गुजार दिए। नन्ना हन्नान रोते हुए उसको अपनी माँ की तकलीफ के बारे में बता रहा था और वो उसके आंसू पोंछता उसकी तसल्ली करवा रहा था। पुलिस उस मुजरिम को उठा रही थी। हानिया, प्लीज आंखें खोलें, एहसन ने उसे पुकारा। हन्नान तो न जाने उसको कब से पुकार रहा था, मगर वो किसी की नहीं सुन रही थी, जैसे पहले नहीं सुना करती थी। उसकी आंख खुली, पलकों पर निहायत बोझ था। कमरे में अजीब सी दवाइयों की नागवार बदबू फैली हुई थी। पूरा बदन बुरी तरह दुख रहा था। उसने उठना चाहा मगर बदन ने इजाजत नहीं दी। यूं ही लेटे लेटे गर्दन मोड़ी तो एहसन सोफे पर बैठा उसी को देख रहा था। उसके तासुरात से साफ नजर आ रहा था कि वो इससे शदीद नाखुश है। एहसन का ख्याल आते ही हन्नान का ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में कूदा। नैनू, वो तड़प कर उसको पुकारती पूरी हिम्मत करके उठी और बिस्तर से निकलकर जाना चाहा, मगर एहसन ने उठकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। मेरा बेटा कहाँ है? वो आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ बेताबी से उससे इस्तफसार कर रही थी। एहसन ने लब भेंचकर खुद पर जब्त किया। चच्चा सरकार के साथ है वो सपाट लहजे में बोला। वो ठीक है ना? हानिया की बेचैनी उरूज पर थी। जी हाँ, वो तो ठीक है, पर आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसके साथ कुछ बुरा करने की। वो शदीद नागवारी से बोला। तुम वहां कैसे आए? वो उसके तंज को इग्नोर करती पूछ रही थी। हन्नान ने मुझे कॉल की थी उस शख्स को गोली मारने के बाद। वो इत्मीनान से उसके सर पर बम फोड़ता बोला। हानिया के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। गोली? वो अटकी। जी, एक गोली से ना सिर्फ उसने आपकी इज्जत उस दरिंदे से बचाई, बल्कि पुलिस को उस दरिंदे को पकड़वाने में भी मदद की, जिसकी उनको कब से तलाश थी। वो शख्स लड़कियां फरोख्त करने का काम करता था। अगर आपका बच्चा इस कदर बाहिम्मत ना होता तो पता है इस वक्त आप पर क्या बीत रही होती। वो बोलते बोलते मारे जज्बात की शिद्दत के रुका। हानिया ने देखा उसकी आंखें आंसुओं की शिद्दत से भीगती जा रही थी। वो सांस रोके उसे सुने गई। मैंने उसको ये सब इसलिए नहीं सिखाया कि वो मासूमों की जान लेता फिरे या खानदानी दुश्मनियां निभाए। मैंने उसकी बहुत बेहतरीन तरबियत की है। वो मेरे भाई का खून है, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा, पर आपके खाली दिमाग में ये बातें नहीं ठहरती। वो नागवारी से बोलकर पलट गया। प्लीज मुझे नैनो से मिलवा दो, वो मुल्तजी लहजे में बोली। कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके करीब अब ऐसा कोई वजूद फटकने नहीं दूंगा जिससे उसको खतरा हो, समझी आप? वो बरहमी से बोला। हानिया का मीटर उसकी बात पर घूमा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरा बेटा है, तुम उसको यूं मुझसे नहीं छीन सकते।
वो गुर्राई। एहसन सर झटक कर तन से हंसा। हानिया गुस्से से उसे देखे गई। मतलब ये कि चच्चा सरकार अम्मा बेगम के साथ मिलकर कहीं आपके रिश्ते की बात चला रहे हैं। उनको लगता है कि आपको शादी से नहीं बल्कि मुझसे शादी करने में मसला है, तो उन्होंने बाहर आपके रिश्ते की तलाश शुरू कर दी है। तैयार रहिएगा आप। वो एक और धमाका हानिया पर करके इत्मीनान से उसकी जानिब देखने लगा, जिसकी हालत ऐसी थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। आपकी शादी होने के बाद हम सब हनान समेत शहर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप पहले मान जाती तो आप भी हमारे साथ चल सकती थी, मगर आपकी बागी तबीयत को कंट्रोल करने के लिए आपको शादी जैसी लगाम डालनी जरूरी है। वो अफसोस से सर हिलाता बोल रहा था। मेरी इजाजत के बगैर कोई ऐसा करके तो दिखाए। मेरे बेटे को मुझसे छीना तो सबको मार दूंगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसके लिए जबान की लड़खड़ाहट पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगी। अपनी हिफाजत तक तो कर नहीं सकती आप। वो उसकी हंसी उड़ाता बोला और फिर चुपचाप पलट गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। प्लीज बाबा सरकार को रोक दो रिश्ता करने से। वो उसकी पीठ पर अचानक बोल उठी। एहसन के कदम बेख्तियार रुक गए। आंखों में बेयकीनी उतरी थी, मगर वो मुड़ा नहीं। वो नहीं चाहता था कि हानिया उसके चेहरे पर दीवानों जैसी खुशी को देख सके। सीने से गहरी सांस खारिज करके उसने खुद पर काबू पाया और सपाट नजरों से मुड़कर हानिया को देखा, जो बेचारगी से उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा, वो लठ मारते अंदाज से बोलकर वहां से निकल गया। पीछे वो अपना सर हाथों में गिरा गई। ये क्या बेवकूफी कर दी थी उसने। एहसन कमरे का दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। स्याह रंग की शेरवानी में वो बेहद जाजिब दिखाई दे रहा था। दूसरा उसके चेहरे की खुशी थी, जो उसको नजर भर कर देखने पर मजबूर कर देती थी। उसके अंदर दाखिल होने पर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हानिया ने एक नजर उसे देखा और चेहरा मोड़ गई। आज उनकी शादी हुई थी, मगर हानिया को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो दुल्हन है। मेकअप से आरी चेहरा लिए घरेलू लिबास में मलबूस वो नमाज की तैयारी कर रही थी। कैसी हैं आप? एहसन ने बिना उसकी हरकत का बुरा मनाए पूछा। वो अभी तक दरवाजे पर खड़ा था। दुपट्टा सर पर नमाज के अंदाज से लपेटती हानिया ने नाखुशी से उसे देखा। अपनी हार का सोग मना रही हूं, वो आंखें घुमाकर बोली, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। वो एहसन से शादी होने पर दिल ही दिल में मुतमईन थी। वजह यह थी कि वो सब उनकी शादी से पहले शहर शिफ्ट हो गए थे। हनान उनकी शादी को लेकर इतना खुश था कि वो हर पल हानिया को बताता कि अब वो एहसन को बाबा कहकर पुकारेगा। और सबसे ज्यादा बात जो हानिया के लिए तसल्ली बख्श थी, वो ये कि एहसन खाकवानी अपनी जान से बढ़कर हनान को चाहता था। उसके बेटे का मुस्तकबिल महफूज था। वो खुश था अपनी माँ के रिश्ते से, तो वो क्यों नाशुक्री करती। वहां क्यों खड़े हैं? आपका कमरा है ये। वो एहसन के चेहरे पर मायूसी देखकर अपने रवैये पर जरा सी नादिम हुई, तभी जल्दी से बोली थी, सरप्राइज। उसी लम्हे हनान एहसन के पीछे से निकला और माँ की टांगों से जा लिपटा। हानिया ने खुशगवार हैरत से उसको देखा। नईमा बेगम तो उसको हनान से अलग करने का सोच रही थी, और इसलिए उन्होंने हनान के लिए अलग कमरा भी सेट करवा दिया था कि वो अब से अलग रहेगा। और उसे जुदाई के ख्याल से हानिया को मजीद दुखी कर दिया था, मगर एहसन की बदौलत वो उस खुशी को भी जी रही थी। हनान को गले से लगाए उसने एहसन को देखा, जो मुस्कुराकर मोहब्बत से उन दोनों को देख रहा था। मामा जी, बाबा ने बोला है कि अब मैं आपके साथ सोया करूंगा, वो खुशी से माँ को बता रहा था। अच्छा, और आपके बाबा दादो का क्या करेंगे? वो मुस्कुराकर एहसन को देखती पूछ रही थी। बाबा ने दादो को बोला कि कोई मुझे मेरे बेटे से दूर करने की अब बात नहीं करेगा। वो एहसन की नकल उतारते बोला तो हानिया की हंसी बेसाख्ता छूट पड़ी। वो दोनों लड़के वहीं थम गए। न जाने कितने अरसे बाद उन्होंने हानिया को इस तरह हंसते देखा था। वो तो इतनी तल्ख हो गई थी कि सिवाय गुस्सा करने और रोने के कुछ नहीं करती थी। दोनों बाप बेटा को महवियत से खुद को तख्ता पाकर वो झेम कर चुप कर गई। नमाज पढ़ी है तुमने? अगले ही लम्हे वो थानेदारनी के रूप में वापस लौटती हनान का कान खींच से पूछ रही थी। ओ मामा जी सॉरी, वो जल्दी से बोला
हद अदब, आप मेरे बेटे को मेरी नजरों के सामने यूं टॉर्चर नहीं कर सकती। एहसन फौरन से बेटे की मदद को लपका, साथ ही नई नवेली दुल्हन को मसनूई गुस्से से डांट दिया। हद अदब बाबा सरकार, आप मेरी मामा जी से यूं बात नहीं कर सकते। हन्नान ने फौरन से बेवफाई की और हंसी रोकते हुए चच्चा की नकल उतारते हुए साबित किया कि माँ के आगे उसके लिए चच्चा भी कुछ नहीं है। हद अदब, तुम मेरे शौहर से यूं बात नहीं कर सकते बच्चे। हानिया को भी इस मजाक का हिस्सा बनते देखकर दोनों ने हवनकों की तरह मुंह खोले एक दूसरे को देखा। हानिया बेचारी शर्मिंदगी से यहां वहां देखने लगी थी। अगले ही लम्हे दोनों लड़कों के मुश्तरका कहके पर उसकी भी हंसी निकल गई। वो लम्हा उन तीनों की जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था। एहसन, नैनो क्या मसला है तुम दोनों के साथ? उठ भी जाओ। नाश्ता टेबल पर लगाती हानिया का एक पैर किचन में था और दूसरा बेडरूम में। वो उन दोनों बाप बेटे को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो सारी रात बाहर सड़कों पर आउटिंग करने के नाम पर घर से बाहर रहे थे और अब देर तक पड़े सो रहे थे। उठते हो या? उसने पानी का जग उठाकर धमकाने के लिए उनके ऊपर किया। दोनों ढिठाई की आला मिसाल बने सोए पड़े रह गए। अच्छा, तो फिर जैसे आपकी मर्जी। उसने बोलने के साथ सारा का सारा जग एहसन पर उलट दिया। वो जो ही हड़बड़ाकर उठा तो साथ ही हन्नान भी उठ बैठा। सर उठाकर देखा तो उन दोनों की पसंदीदा औरत एक हाथ कमर पर टिकाए दूसरे हाथ में खाली जग लिए खड़ी थी। हन्नान ने आओ देखा ना ताओ फौरन से स्पीड पकड़ी और वॉशरूम में घुस गया। उसके जाते ही हानिया ने घूरती निगाहों का रुख बदलकर एहसन की तरफ किया, जो पूरी तरह से भीगा हुआ था, मगर बजाय बुरा मनाने के वो मीठी मीठी नजरों से हानिया के गुस्से से फूली नाक को देख रहा था। बदतमीज, वो नाराजगी से बोलती वापस जाने के लिए मुड़ी, जब भी एहसन ने हाथ से पकड़कर उसे अपने सामने बिठाया। सारा पानी मुझ पर गिराया और अभी बदतमीज भी मैं ही हूं। मुंह बनाकर हानिया से शिकवा करने लगा। बहुत शौक है ना अपने बेटे के हिस्से की मुशक्कतें बर्दाश्त करने का आपको, तो ये भी कर लें। अब मैं चाइल्ड अब्यूज करने से तो रही। वो हंसी दबाकर जबरदस्ती की संजीदगी से बोली। और शौहर पर जुल्म करना जायज है? एहसन ने दुहाई दी। जवाबन वो फखरी अंदाज से मुस्कुराती वहां से चली गई। जल्दी आए और अपने लाडले को फ्रेंच टोस्ट बना कर दे, वरना वो नाश्ता नहीं करेगा। वो जाते जाते याद दिलाना नहीं भूली थी, तो वो सर पर हाथ मार कर उठा। घड़ी देखी तो हन्नान का स्कूल लगने में कुछ ही वक्त बाकी था। हन्नान, जल्दी कर यार, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। वो उजलत में बोलता कमरे से निकला। पीछे से हन्नान की आवाज आई थी, ओके बाबा। मगर उसके बाबा साहब पहले ही कमरे से तशरीफ ले जा चुके थे। रात का वक्त था। आसमान को बादलों ने घेरा हुआ था। ठंडी हवा का रक्स जारी था। चांद कहीं बादलों में छुपा था। हल्की हल्की सी रिमझिम के शुरू होने पर उन तीनों ने बेसाख्ता सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। साथ ही उनके कहकहे वक्फे वक्फे से गूंजते रहे। मना किया था मैंने कि मौसम खराब है। तवक्को के ऐन मुताबिक हानिया का एतराज उठा। उन दोनों बाप बेटा ने एक दूसरे को देखकर हंसी दबाई। मामा जी, इतना मजा तो आ रहा है, अभी तो हमने आइसक्रीम भी खानी है। हन्नान ने मुंह बनाया। कोई जरूरत नहीं, इस बारिश से अगर तुम्हें ठंड लग गई तो बीमार हो जाओगे। चलो वापस घर। हानिया रिवायती माँ का किरदार भरपूर तरीके से निभा रही थी। बाबा, हन्नान ने पैर पटक कर बाप को देखा तो उसने वॉलेट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। जा मेरे शेर, जाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दे, तेरी माँ को मैं संभालता हूं। एहसन ने उसकी पीठ थपथपाई तो हन्नान खुशी से उछलता एक ही जस्त में सामने आइसक्रीम पार्लर के अंदर गायब हो गया। तुम? वो नाराजगी से जच होकर बोलती एहसन को घूर कर हन्नान के पीछे दौड़ी कि उसने बाजू से पकड़कर वापस खींच लिया। किधर जा रही हैं मेरे बेटे की अम्मा? वो गंभीर लहजे में बोला। उसके अंदाज पर हानिया का दिल बेसाख्ता धड़का। गाल गुलाबी पड़ गए थे, मगर फिर न जाने उसे कहां से याद आ गया कि वो तो एहसन से 4 साल बड़ी है। इसलिए पल भर में वो शर्मीली लड़की से खरांट औरत बन गई। छोड़ो मुझे, मैं देख रही हूं इस बच्चे को रोज बरोज बिगड़ता जा रहा है और इसमें सारा का सारा तुम्हारा हाथ है। वो सारा का सारा इल्जाम इत्मीनान से एहसन के कंधों पर डालती बोली। पहली मोहब्बत है आप मेरी,
اس کے برعکس احسن کی جانب سے عجیب سا جواب آیا۔ ہانیہ چند لمحات کے لیے گنگ رہ گئی۔ جب آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی بھائی کے ساتھ، تب سے چاہتا ہوں آپ کو، وہ خمار آلود لہجے میں اظہار کر رہا تھا۔ ہانیہ کے پاس بولنے کو الفاظ ختم ہو گئے، دھڑکنیں بے ترتیب تھی، تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ احسن، اس نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ نرمی سے کاٹ گیا۔ شروع سے چاہتا تھا آپ کو، مگر آپ بھائی سے منسوب تھی۔ آپ سمجھ سکتی ہیں میری تکلیف کو؟ میں نے کتنے سال اس درد اور تکلیف میں گزار دیے۔ اپنی پہلی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنا موت سے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، پر میں نے صبر کیا۔ بھائی کے جانے کے بعد بھی آپ کے انتظار میں ہر ایک پل گزار دیا، اور آج بھی یقین نہیں کر پاتا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اس کی آنکھیں اس بات کا اظہار کرتے نم ہو گئی۔ ہانیہ تو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ تم پاگل ہو بالکل۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑ کر جلدی سے رخ بدل گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دے۔ ٹھیک کہا، میں پاگل ہوں، مگر آپ کے پیار میں، ہانیہ جی۔ اس نے رومانس کے ساتھ ذرا سا ہیومر کا تڑکا لگایا۔ ہانیہ جی؟ ہانیہ کی ہنسی چھوٹی۔ ہاں، جیسے حنان کہتا ہے ماما جی۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ سامنے سے حنان بمشکل آئس کریم کے 3 کپ سنبھالتا چلا رہا تھا۔ بابا ہیلپ، وہ وہیں سے چلایا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھ گئے۔ شام کا وقت تھا، سب لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سلیم خاکوانی، نعیمہ بیگم اور ہانیہ کرسیوں پر براجمان چائے انجوائے کر رہے تھے۔ سامنے وہ باپ بیٹا شوٹنگ کی پریکٹس کر رہے تھے، اور ہانیہ چائے پینے کے دوران مسلسل ان کو گھورے جا رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد کانچ کی بوتل ٹوٹنے پر جہاں حنان کو نانا اور دادی شاباشی دیتے، وہیں ہانیہ کا 1.5 لیٹر خون جل کر راکھ ہو جاتا۔ حنان اور احسن دونوں اپنی عورت کے تاثرات دے کر ہنسی دبا رہے تھے۔ ہانیہ آخرکار تنگ آ کر اٹھی تاکہ ان کو جا کر روک سکے، مگر اگلا لمحہ بہت ہی غیر متوقع تھا جب احسن نے اپنی ہاتھ میں پکڑی پستول کا رخ ہانیہ کی طرف کیا۔ ہانیہ کی جان فوراً سے نکلی، چیخ مار کر وہ باپ کی آڑ میں جا چھپی۔ سب کے چھت پھاڑ کہوں سے گھر گونج اٹھا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک ہیں؟ حنان بے تحاشا ہنستا گھاس پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ احسن ہنسی کی شدت سے بے حال ہوتا باپ کے پیچھے چھپی ہانیہ کے پاس آیا۔ سلیم صاحب بیچارے خود ہنسی دباتے اس کو تسلی دے رہے تھے۔ ہانیہ نتنے پھلائے اس کو گھورتی اٹھی اور پھر پیر پٹک کر اندر جانا چاہا، مگر احسن نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور زبردستی اپنے بازو کے حصار میں لیے وہاں سے چلایا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اور حنان شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے۔ احسن نے زبردستی پسٹل اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ کی جان پر بنائی۔ حنان مسکراتا ہوا نانا کے پاس بھاگ گیا تھا۔ آپ کو سیلف ڈیفینس سکھا رہا ہوں۔ اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ تھامے رخ نشانے کی جانب کیا۔ میں نہیں کر سکتی۔ ہانیہ کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ میں آپ کی دوسری محبت ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ احسن کی بھی عجیب منطق تھی۔ ہانیہ بے بس ہو گئی۔ اچھا، مطلب میں آپ کی زندگی میں دوسری محبت کی بھی جگہ نہیں رکھتا؟ وہ ہانیہ کے شوٹ نہ کرنے پر مایوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے ٹھا کی آواز کے ساتھ کانچ کی بکھرنے پر اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ ہو گئی تسلی؟ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ پیچھے سب تالیوں کے شور میں اس کی تعریف کر رہے تھے۔ احسن بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ جس چیز کی بدولت ہانیہ اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، آج اسی سے اپنی محبت کی مہر لگا کر گئی تھی۔ احسن خاکوانی سرشار سا مسکرا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔